Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. Today, apart from CSAT, we are going to talk about the General Studies paper, and the topic of today's discussion would be polity. So, the paper is nearby, and we cannot study the whole polity completely as of now. So, what we can do is we can focus on some themes which UPSC keeps on repeating, and based on those themes and current affairs, we have made some questions for you. These questions were already uploaded in Telegram channel of D's Coded. You can go to the Telegram channel in the description of that video and go through those questions. If you have already done that, then let's start this video. So before discussion, we would like to talk about some of the important PYQ themes which UPSC keeps on repeating. So before that, you can take out a pencil and a paper and start jotting down those themes. The themes are preamble. Number one theme is preamble. UPSC keeps on asking questions on preamble. The question might be of a kind that whether preamble is justiciable or not, whether preamble is a part of constitution or not, or how many types of uh, speech of expression the preamble provide, what is the source of preamble, these type of question it might ask. Then the next favorite topic is fundamental right, DPSP, and fundamental duties. It generally asks questions by comparing them, that uh, whether fundamental right is justiciable or not, or DPSP is justiciable or not. Fundamental right provides political justice, and DPSP provide economic and social justice. These kind of questions it asks. Then it can ask questions from citizenship. One of the famous topic that is always seen in UPSC papers is about liberty. Other questions can be the features of Indian Constitution, that Indian Constitution is unitary bias, sui generis, and the other questions can be of the type of government, that parliamentary form of government, unitary form of government, constitutional form of government. Okay. Then Article 21 and 32 are very important. Then punitive and preemptive distinction, and then your parliament. In parliament, they ask you about basically money bill. From parliament, the most favorite topic of UPSC is money bill. So here a lot of topics are given. You can jot it down from the video. Then they ask about committees and joint sitting, for which bills joint sitting is possible and for which bill joint sitting is not even required. Then they ask about special powers of Lok Sabha and Rajya Sabha. That's some of the powers which are exclusive for Rajya Sabha. For example, for creating an all India services, only Rajya Sabha has the power. And regarding the money bill, only Lok Sabha has the power. So in this way, they keep on asking the question. Then other can be type of amendment, that under 368 what are the definition of different type of amendment. Then one of the important topic is of emergency also. They ask questions from external emergency, financial emergency, or constitutional emergency. Then Supreme Court and High Court. In Supreme Court and High Court questions, they generally ask about the power of Supreme Court and High Court in terms of fundamental right, that which court has more power. So High Court has more wider jurisdiction in case of fundamental right. And then Panchayat and municipalities. In Panchayat and municipalities, they generally ask about the amendment and the schedule of the same. Then Governor, CBI, Chief Election Commissioner, Finance Commission, State Finance Commission, State Election Commission. These are some of the important topics which they keep on repeating. So whenever you are revising the polity, you can focus more on these topics, because questions generally come from these topics only. I am guaranteeing you that if you prepare these topics very well, then if let's say 20 questions come from polity, then 16 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे. ठीक है. बाकी और क्वेश्चंस को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करने के लिए हमने क्या किया कि इन थीम्स को यूज करके जो करंट अफेयर में हमारे पास टॉपिक आ रखे हैं, हमने उससे क्वेश्चन बनाया. तो हम उन क्वेश्चंस पे हम आपके चलते हैं आगे. So the first question goes like about the preamble. सो ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया? पहली बात तो प्रियम्बल यूपीएससी की एक थीम है अपने आप में, ठीक है. दूसरा क्या है कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें चैलेंज किया गया था इंक्लूजन ऑफ वर्ड्स सोशलिस्ट और सेक्युलर को. ठीक है, कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स को क्यों इंक्लूड किया गया प्रेम्बल में. तो ये किसी आदमी बलराम सिंह ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर बाद में प्रेम्बल के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन लेंगे.
तो द क्वेश्चन गोज लाइक, consider the following statement consider the following statement in respect of preamble to the Constitution of India. Statement 1, preamble to the Constitution of India has no legal effect independently of other parts. बिल्कुल ठीक बात है, जो प्रियम्बल है ना खुद उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता। अब सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गलत बात है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है। ये केशवानंदा भारती केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर बनेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आपका आंसर सी बन जाएगा। अब थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में देखते हैं। देखिए प्रियम्बल यहाँ दिया हुआ है, प्रियम्बल में बेसिकली आप प्रियम्बल खुद पढ़ लें, पर छोटी छोटी बातें कुछ प्रियम्बल के रिस्पेक्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि ये पूछता है कि प्रियम्बल जस्टिशिएबल है या नहीं। क्या आप कोर्ट में जा सकते हो प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स लिखे हैं उसके लिए मांग करने के लिए? नहीं जा सकते। प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ है, केशवानंदा भारती केस में बोला गया था। क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रियम्बल की बात होती है वो यहाँ है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके अंदर तीन वर्ड्स जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इसको ऐड किया गया था प्रियम्बल में। याद कर लीजिए कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया था, और जो यूनिटी ऑफ नेशन लिखा हुआ था प्रियम्बल में उसकी जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को ऐड किया गया था। अब यहां पर आइए, अब सोर्स ऑफ जो प्रियम्बल की पावर का सोर्स है वो कौन है? यहां सीधा ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रियम्बल गेट्स इट्स पावर फ्रॉम, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव इट्स पावर फ्रॉम वेयर? द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो है ना वो इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है वो बताता है। तो प्रियम्बल आया कहां से? प्रियम्बल आया हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए पास करी थी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic। तो 42nd अमेंडमेंट से जो आपके पास है सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड आए थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट, उससे पहले सिर्फ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। एंड टू सिक्योर फॉर ए सिटीजन्स, अभी कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कौन कौन सी जस्टिस के बारे में प्रियम्बल बात करता है, तो होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस ना आपका डीपीएसपी बताता है, और पॉलिटिकल जस्टिस आपका फंडामेंटल राइट देता है। फिर ये पूछ लेता है कि कौन सी लिबर्टी देता है प्रियम्बल? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। फिर इक्वालिटी कौन कौन सी प्रोवाइड करता है? स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है, उससे पहले यहाँ पे सिर्फ था आपके पास यूनिटी ऑफ नेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। In our Constituent Assembly 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट और enact हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो प्रियम्बल ये पूछ लेता है कि प्रियम्बल कब enact किया गया था या कॉन्स्टिट्यूशन कब enact किया गया था। ये आपका 26 नवंबर 1946 का, कभी कभी ये डेट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसी के साथ प्रियम्बल का टॉपिक खत्म होता है। आज इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस जो ये जजमेंट आई ना यहाँ पर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें बात हुई थी सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को क्यों इंक्लूड किया गया। तो यूपीएससी सेक्युलर वर्ड को उठा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। With reference to India, consider the following statement: the separation of the state and the religion is not that strict in India as compared to Western secularism। हाँ, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में जो चर्च है और स्टेट है वो कंप्लीटली सेपरेटेड है। जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है रिलीजन के मामलों में, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट किसी किसी मैटर में करती है इंटरफेयर। ठीक है, the concept of secularism is enshrined in Article 14, 15 and 16 of the Indian Constitution but not in Article 25, 26, 29, 30। ये गलत है। 14, 15, 16 में भी है और 25, 26, 29, 30 में भी है। Under Article 368 of the Indian Constitution, the amending power of the Parliament extend even up to amending the preamble to the Constitution। हाँ, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि आप प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हो। ठीक है, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है और पिनलाइज नहीं करता है किसी भी आदमी को प्रैक्टिस या प्रोफेस करने से किसी भी फेथ को, ठीक है। और स्टेट का खुद का कोई अपना रिलीजन नहीं है। तो सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट सपोर्ट नहीं करता किसी भी रिलीजन को और किसी भी आदमी को पिनलाइज नहीं करेगा अगर वो कोई भी फेथ को प्रैक्टिस करे या प्रोफेस करे, और स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। पर इंडिया में क्या है कि थोड़ा बहुत जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर में इंटरफियर करता है, ठीक है। जैसे कि हमने ट्रिपल तलाक के अंदर देखा तो वो एक रिलीजियस मैटर है पर गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफेयर किया, ठीक है। और ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें इंटरफेयर किया थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने, तो वो रिलीजियस हो गया कि हिंदू रिलीजन के बारे में बात हो रही है वहां पर, ठीक है। और जैसे जैनिज्म है, जैनिज्म में पहले फास्टिंग अंटिल डेथ का प्रोविजन होता था जैनिज्म में, तो उसने गवर्नमेंट ने उसको बैन किया। तो गवर्नमेंट ने रिलीजन के अंदर इंटरफेयर किया इंडिया में। तो इंडिया के अंदर स्टेट और रिलीजन वॉट बिल्कुल ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत इंटरफेयर करता है स्टेट वेस्टर्न के रिस्पेक्ट में, वेस्टर्न में बिल्कुल ही सेपरेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म इज इंश्राइंड इन आर्टिकल 14, 15, 16 एंड आर्टिकल 25, 26, 29, 30। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्युलरिज्म कौन कौन से में मेंशन किया गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। अब अगला जो करंट अफेयर का आपके पास आता है वो ये है कि 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया आया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया? वो आया 26 जनवरी 1950 में। पर ये सेलिब्रेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका 26 नवंबर को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर को, जो हमने प्रीएम्बल में पढ़ा है कि हमने अपने आप को अडॉप्ट करके दिया 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका बनेगा 26 नवंबर को। तो इस साल 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे के साथ साथ संविधान दिवस भी बनाया जाता है। कब से बनाया जा रहा है संविधान दिवस? 2015 से, मार्क करने के लिए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अब फीचर, अब इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये श्यू जनरिस्ट है, मतलब अपने टाइप का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मतलब रिजिड भी है। श्यू जनरिस्ट का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। जनरली रिजिड जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो रिजिड होते हैं और जो नॉन रिटन होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड बन जाता है और फ्लेक्सिबल भी बन जाता है, ये इसके फीचर है। फिर ये यूनिटरी बायस्ड है, मतलब ये फेडरल तो है अपने आप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर यूनिटरी की तरफ ज्यादा झुकाव है, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन में सारी की सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है, ठीक है। और सेंटर कभी भी स्टेट पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकता है अगर स्टेट सेंटर की बात ना माने तो इस वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी बायस्ड है, ठीक है। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास सेंटर और स्टेट के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हैंड रिटन था, टाइप नहीं था, और इंग्लिश में इसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और हिंदी में लिखा था वसंत कृष्णन वैद्य ने। तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इन सारे फैक्ट्स को आप रोट लर्न कर लीजिए। इन इन थीम्स को रिवाइज करने के अलावा जो यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं उनको भी रोट लर्न कर लीजिए, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यूपीएससी की हैबिट है जो पीवाईक्यू का थीम और करंट अफेयर है उसको यूज करके क्वेश्चन बनाती है वो। अब देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के कंपैरिजन पे। तो ये क्वेश्चन क्यों आया? ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि पीवाईक्यू की थीम है प्रेसिडेंट, अपने आप में पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट, ठीक है। और करंट अफेयर में इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कंपैरिजन करो यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स का। तो आप क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द पावर ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एक्सटेंड्स टू फेडरल एज वेल स्टेट क्राइम्स। नहीं, जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसकी पावर स्टेट और फेडरल क्राइम्स दोनों तक एक्सरसाइज कर सकता है वो, पर जो यूनाइटेड स्टेट्स का है वो सिर्फ फेडरल क्राइम्स तक कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। बोथ द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू पैर्डन अ person impeached by the parliament in case of the president of India and impeached by the Congress in case of president of USA। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पार्लियामेंट ने किसी को इम्पीच कर दिया तो उसको प्रेसिडेंट पार्डन नहीं दे सकता इंडिया में, और अगर यूएस कांग्रेस ने किसी को इम्पीच कर दिया तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उसको नहीं दे सकता पार्डन। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एक्ट्स ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, ये बिल्कुल ठीक बात है।
वेयर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी पावर्स की बात कर लेते हैं। जो इंडिया में है ना, जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस इंक्लूडिंग दोज ऑफ स्टेट्स। अगर डेथ सेंटेंस किसी को सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट से तो उसको भी पार्डन कर सकता है वो। अगर स्टेट के हाई कोर्ट से सुनाया गया उसको भी पार्डन कर सकता है। और यूएसए का जो है वो पार्डन कर सकता है सिर्फ अगर फेडरल डेथ सेंटेंस है। तो अगर स्टेट से डेथ सेंटेंस सुनाया गया तो उसको पार्डन नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसी के साथ आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास, जो है आपका हाई कोर्ट के ऊपर। अब ये क्वेश्चन क्यों आया, देखिए कि ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया। पहले तो पी वाई क्यू की थीम है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपने आप में। ठीक है। ये पी वाई क्यू की थीम है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और करंट अफेयर में अभी अभी ना इम्पीचमेंट करने की कोशिश की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की राज्यसभा के अंदर। तो ये करंट अफेयर में था। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओनली 2 हाई कोर्ट जजेस हैव बीन इम्पीच सो फार इन इंडिया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि अभी तक एक भी हाई कोर्ट जज को इम्पीच नहीं किया गया, पर 6 बारी ट्राई किया गया है। 6 टाइम्स ट्राई किया गया है पर एक भी बारी नहीं किया गया। द वर्ड इम्पीचमेंट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 डील्स विद द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 218 डील्स विद द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। ये भी ठीक है। तो आप याद रखो 124 से सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव होता है और 218 से हाई कोर्ट, पर इंपीचमेंट कहीं नहीं लिखा। ठीक है। और ये जो किस बेसिस पे रिमूव हो सकता है वो होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पर इनका मीनिंग क्या होगा कि प्रूवन मिसबिहेवियर क्या है और इनकैपेसिटी क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ना वो रेगुलेटेड है बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग। तो इसमें होता क्या है, प्रोसेस कैसे शुरू होती है। पहले मोशन अगर लोकसभा में आ रहा है मोशन तो 100 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर को साइन करना पड़ेगा। फिर ये मोशन जब ये साइन हो जाएगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे। तो अगर ये मोशन अडॉप्ट हो गया तो फिर ये एक 3 मेंबर कमेटी के पास जाएगा जो इस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन 3 मेंबर कमेटी में होते हैं आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और या फिर एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। ठीक है। 3 लोग होंगे इसमें। अब ये फिर आगे ये जो कमेटी है ये रिपोर्ट सबमिट करती है या तो स्पीकर के लोकसभा को या राज्यसभा के चेयरमैन को, जहां भी आपका ये मोशन जनरेट हुआ था वहां रिपोर्ट सबमिट होगी। और ये फिर इसको प्लेस करता है राज्यसभा या लोकसभा में। इफ जज फाउंड गिल्टी, अगर जज गिल्टी फाउंड किया जाता है तो रिपोर्ट इज अडॉप्टेड बाय द, जिस हाउस में वो मोशन पास हुआ होता है ना तो उस हाउस में उस रिपोर्ट को अडॉप्ट करते हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से। और अगर वो अप्रूव हो जाती है मोशन तो फिर उसके बाद वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट को, और अगर प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देता है तो फिर जो जज है वो रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए इसी के साथ। अब देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखो फंडामेंटल राइट ना बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। और आर्टिकल 21 तो बहुत ही ज्यादा, आर्टिकल 21 से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस ये पूछ चुका है, राइट टू प्राइवेसी पूछ चुका है, और भी क्वेश्चन पूछ चुका है आर्टिकल 21 से। तो अब हुआ क्या था कि पीवाईक्यू थीम, अब क्वेश्चन क्यों बनाया गया, क्योंकि पीवाईक्यू थीम है फंडामेंटल राइट पहली बार। और दूसरा एक जजमेंट है एम के रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 अ पर्सन हैज द राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आर्टिकल 14 और 21 तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से आर्टिकल 14 और 21 के अंडर एक आदमी राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर अगर मतलब जस्टिस लेना चाहता है तो वो अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। आर्टिकल 14 का मतलब है राइट टू इक्वलिटी।
और आर्टिकल 21 के अंदर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये याद रखिएगा, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आ सकता है क्वेश्चन की राइट अगेंस्ट एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये किसके अंडर आया आपका? आर्टिकल 14 और 21। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट की, क्योंकि फंडामेंटल राइट पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो उसके फीचर्स हैं, और डीपीएससी से कंपेयर करके पूछता है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमने यूएसए से लिया है पहली बात, और डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से। अब आगे क्योंकि कंपैरिजन में पूछता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी क्वेश्चन, तो हम कंपैरिजन में देखेंगे। फंडामेंटल राइट आपका मेंशन है पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35, और डीपीएसपी आपका मेंशन है पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51। फंडामेंटल राइट आपके जस्टिसिएबल होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। अगर आप जुरिडिक्शन की बात करोगे तो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन ज्यादा वाइडर है फंडामेंटल राइट के केस में सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से। ठीक है। फंडामेंटल राइट आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी आपका इंश्योर करता है डीपीएसपी। ये क्वेश्चन आ रखा है पहले और 2-3 बार ही आ रखा है कि फंडामेंटल राइट तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है और डीपीएसपी आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है। फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है स्टेट पे। ठीक है। और जो डीपीएसपी है वो गाइड करता है गवर्नमेंट को लॉज बनाने के लिए या अचीव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी एंड एसटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, अपलिफ्टमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ चाइल्ड लेबर, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर चाइल्ड, ये सब। ठीक है। अब इमरजेंसी जब आती है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, पर आपके डीपीएसपी कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब ये जो जजमेंट आई थी आपके पास एम के सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, ये इसलिए आई थी क्योंकि किसी आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में डाला वो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि जो पावर लाइंस है ना डेजर्ट्स के अंदर, उनसे वो बर्ड्स टकरा कर मर रहे हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी एक अपने आप में फिर टॉपिक हो जाता है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? एक हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये। ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान वाले एरियाज में मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और बेसिकली जो उसका हैबिटेट है वो ग्रासलैंड है। अब हो क्या रहा है कि वो जो सोलर पैनल लगा रहे हैं ना डेजर्ट के अंदर, तो वो ग्रासलैंड के ऊपर लगा रहे हैं। तो पहली बात तो उसका ग्रासलैंड हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। फिर वो जो सोलर पैनल की जो पावर लाइन जाती हैं उसमें बर्ड टकरा के मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि इस बर्ड की जो आंखें हैं ना वो साइड्स पे होती हैं फ्रंट में होने की बजाय। तो इसके पास फ्रंटल व्यू नहीं होता, इसको साइड में ज्यादा दिखता है फ्रंट की बजाय। जब इसको साइड में दिखता है, अपने राइट और लेफ्ट में ज्यादा दिख पाता है, सामने नहीं दिख पाता, तो ये जब सामने उड़ रहा होता है तो इसको पावर केबल्स नहीं दिखती हैं, तो इसमें टकरा के मर जाता है। जो ये ग्रासलैंड्स होते हैं उनको सीक्रेट ग्रुप्स भी कहा जाता है ओरांस नाम से डेजर्ट में। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा मिलता है डेजर्ट नेशनल पार्क में, जो आपका राजस्थान में है, 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है डीलिमिटेशन कमीशन पे। अब ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया? इसको क्वेश्चन को इसलिए बनाया गया क्योंकि आपका डीलिमिटेशन कमीशन अभी एक तो पीवाईक्यू की थीम है, पहले भी पूछ चुका है क्वेश्चन, और दूसरा करंट में था किशोर चंद्र चंगोन लाल राठौड़ 2024 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो रिव्यू कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इफ द ऑर्डर इज मैनिफेस्टली अर्बाइटरी। अगर मैनिफेस्टली अर्बाइटरी है डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर, तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। वैसे तो जनरल जो ऑर्डर होता है डिलिमिटेशन कमीशन को, उसको किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। तो अब आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 82। हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन जो है आर्टिकल 82 में के अंडर कॉन्स्टिट्यूट होती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डिलिमिटेशन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। आर्टिकल 82 कहता है कि डिलिमिटेशन जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी करेगी जो पार्लियामेंट अपना लॉ बना के डिटरमाइन करेगा। जब कोई भी अथॉरिटी पार्लियामेंट के लॉ से बन रही है तो वो स्टैट्यूटरी हो गई, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हुई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर आर्टिकल 82 के अंडर जरूर फॉर्म होती है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं स्टैट्यूटरी है, पर आर्टिकल 82 के अंदर फॉर्म होती है, सही है। द ऑर्डर्स मेड बाय डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ये यहां तक देता ना, सिर्फ स्टेटमेंट यहां तक देता
कि एनी कोर्ट ऑफ लॉ तक, यहाँ फुल स्टॉप लगा था तो स्टेटमेंट सही हो जाती, पर आगे लिख रहा है इवन इफ द ऑर्डर्स आर मैनिफेस्टली अर्बाइटरी। अगर मैनिफेस्टली अर्बाइटरी है तो रिव्यू हो सकता है क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया है 2014 में ही, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पर अगर ये सिर्फ यहाँ तक होता कोर्ट ऑफ लॉ तक तो ये सही होती। इवन इफ वाला जो स्टेटमेंट यहाँ का है अगर ये नहीं होता इसमें तो ये स्टेटमेंट सही होती है। अगर अर्बाइटरी ऑर्डर तो चैलेंज हो सकता है कोर्ट। द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड इन लोकसभा, हाँ लेड किए जाते हैं, एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इवन बाय पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट सही है। डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर जो है वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन में ले होते हैं और पार्लियामेंट भी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। हो गया इतना। अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन आ चुकी है, 1952 में, 63 में, 73 और 2002 में। ठीक है, इनको याद कर लीजिए फैक्ट्स को। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। ये इमरजेंसी के ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, इमरजेंसी आपकी आर्टिकल 352 से 360 तक लगती है। अब ये पीवाईक्यू थीम इमरजेंसी अपने आप में बहुत बड़ी क्वेश्चन आ रखा है। और करंट में क्यों आया, क्योंकि 2024 में इंटरनल इमरजेंसी को लगे हुए 50 साल कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, और ये ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने लगाई थी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। तो इंटरनल इमरजेंसी लगी कब थी, 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को। अब क्वेश्चन देखते हैं इमरजेंसी पे क्या है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। नहीं, सारे सस्पेंड नहीं होते, पहले सारे सस्पेंड हो जाते थे, पर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद से सिर्फ आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के सब सस्पेंड हो जाते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, पहले सारे हो जाया करते थे। प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी आर मेंशन्ड इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, पार्ट 17 में नहीं, ये पार्ट 18 में आता है आपका, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पार्ट 18 में आता है वो इमरजेंसी, याद रखिएगा। द प्रोविजन रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वर टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये बिल्कुल ठीक है, जो फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन है इमरजेंसी के दौरान वो जर्मनी से ली गई है। The written advice of the Council of Ministers to the President is necessary for the proclamation of any type of emergency। बिल्कुल ठीक है, पहले जरूरत नहीं होती थी रिटर्न एडवाइस लेने के लिए, पर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद से रिटर्न एडवाइस जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रेसिडेंट को प्रोक्लेमेट करने के लिए इमरजेंसी। अब देखिए आर्टिकल 352 के अंदर जो इमरजेंसी लगती है उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। जिसके कंडीशन हो सकते हैं वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रिबेलियन। पहले इसको इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता था, पर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद से इसको आर्म रिबेलियन कहा जाने लगा। तो आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी जो लगती है वो लगती है दो कंडीशन के अंदर, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रिबेलियन। और 356 के अंदर लगता है प्रेसिडेंट रूल, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, मतलब कि जब स्टेट जो है ना कोई भी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है या फिर वो सेंटर के किसी डायरेक्शन को नहीं मान रहा है। और आर्टिकल 360 के अंदर लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जहां पे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो खतरे में है, मतलब पैसा नहीं है सरकार के पास ज़्यादा, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। इसके अंदर जो है कुछ चीज़ों को कर्टेल किया जाता है फाइनेंसिस को। ठीक है, तो आप इमरजेंसी को ढंग से पढ़ने से क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ का क्वेश्चन है। पहली बात, ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि पीवाईक्यू है एंटी डिफेक्शन लॉ, एक टॉपिक है अपने आप में पीवाईक्यू थीम में। और करंट में एससी ने डिसमिस कर दिया है एक रिट जो चैलेंज कर रहा था 10th शेड्यूल को, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट को डिसमिस कर दिया जो चैलेंज कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 10th शेड्यूल को। अब क्वेश्चन देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ मेंशन द टाइम विद इन विच स्पीकर सेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट डिसाइड ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ। नहीं, ये किसी भी टाइम को मेंशन नहीं करता है। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि टाइम लिमिट में देना होगा, पर इस लॉ के अंदर कुछ नहीं मेंशन है ऐसा। पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेक्टेड अंडर 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 प्रोवाइड फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। नहीं, ये आपका शेड्यूल 10 में है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया है, पार्ट 10 में नहीं है। लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ अलाउज मर्जर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर इफ 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर आर इन फेवर। ये बिल्कुल सही है। Under this law, a member of a political party does not amount to disqualification if he voluntarily gives up his party membership। नहीं, अगर वो voluntarily अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देगा तो उसको उसका डिफेक्शन हो जाएगा, उसको डिस्qualify कर दिया जाएगा उसकी मेंबरशिप को। तो ये आपका गलत है। ठीक है,
अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10th शेड्यूल के अंदर आता है, जो आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए के बारे में बात करता है। जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है ना, कि कौन सा मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा वो नहीं होगा, वो डिसाइड करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या क्या हैं ये देखते हैं। अगर किसी भी मेंबर ने वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा ही। ठीक है, अगला होगा, अगर उसकी जो पार्टी लाइंस है उसके अगेंस्ट वो वोट करता है। जैसे पार्टी ने कहा कि इस चीज़ पे वोट करना है या नहीं करना, तो अगर उसने उसके अगेंस्ट वोट किया तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो है, जो इंडिपेंडेंटली जीता है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो भी आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो नॉमिनेशन होने के 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 6 महीने से पहले पहले कर सकता है। एक्सेप्शन ये है कि तब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा मेंबर, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बना लेती है, अगर उसके 2/3 जो लेजिस्लेटर है उसके फेवर में है तो तब कोई भी मेंबर आपका डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। या फिर अगर किसी पर्सन को स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपॉइंट कर दिया गया है, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर सकता है और फिर उसको दोबारा ज्वाइन कर सकता है जब वो उस पोस्ट को छोड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब रिसेंटली 18th लोकसभा हुई थी, तो प्रेसिडेंट ने जो है जॉइंट एड्रेस किया था उसको, तो इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ में था। तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सारे प्रोविजंस को ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना होता है कि पावर पढ़ लो एक, तो क्या क्या है इसकी, वर्सेस गवर्नर क्या क्या काम कर सकता है ये, ठीक है, और बिल्स के रिगार्डिंग जो इसके प्रोविजन हैं वो पढ़ लीजिए, इसी में से आता है। और जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें जो वैल्यू ऑफ वोट होती है, वैल्यू ऑफ वोट वो पढ़ लीजिए। वैल्यू ऑफ वोट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नेवर एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 86 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, आज तक 86 के अंडर इसने कभी भी एड्रेस नहीं किया है। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द 17th लोकसभा। नहीं, अभी 18th लोकसभा रिसेंटली, जो लोकसभा रिसेंटली जो हुई है वो 18th है, जो चल रही है अभी। द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन कैन नॉट समन हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, ये वो कर सकता है, ये गलत बात है। अपनी ओन डिस्क्रिशन पे वो बुला सकता है दोनों हाउसेज को, ठीक है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू सर्व एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज इज डिस्क्रिशनरी। ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आती है। ज्यादातर पावर जो एक्सरसाइज करता है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही करता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो फिर से आर्टिकल फंडामेंटल राइट के ऊपर है। अब ये क्यों लिया गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक थीम है अपने आप में, और आर्टिकल 21 पे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट में क्वेश्चन आते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन या तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के कंपैरिजन में आते हैं, या फिर वो आएंगे आर्टिकल 21 के ऊपर, जो उसकी डेफिनेशन होती है उस पर, कि आर्टिकल 21 में क्या क्या आ सकता है। अब करंट में क्या है कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फॉरगॉटन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक, में अभी अभी एक रेट गई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एनालाइज कर रहा है, तो इसलिए करंट में इंपॉर्टेंट है। और राइट टू प्राइवेसी तो बहुत ही फेवरेट है यूपीएससी का, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने उठा लिया है। तो अब ये है राइट टू, द राइट टू इरेजर इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आर्टिकल 21। राइट टू इरेजर कुछ नहीं है, वो राइट टू फॉरगॉटन ही है। राइट टू इरेजर का, राइट टू फॉरगॉटन का दूसरा नाम है राइट टू इरेजर। राइट टू फॉरगॉटन का मतलब, जैसे आपका कोई भी पर्सनल डाटा है, वो कुछ टाइम बाद डिलीट कर देना चाहिए सरकार को, आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, ताकि वो डाटा मिसयूज ना हो, तो वो ही राइट टू इरेजर है। राइट टू फॉरगॉटन और राइट टू इरेजर राइट टू प्राइवेसी के अंडर आते हैं, जो होता है आर्टिकल 21 के अंदर। अभी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी आया कहाँ से? के एस पुट्टुस्वामी केस था 2017 का, उसमें राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर इंक्लूड किया गया राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी अपने आप में राइट टू लाइफ का पार्ट है, जो आता है आपका आर्टिकल 21 में, ठीक है। फिर राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है राइट टू बी फॉरगॉटन, जिसको हम और कहते हैं राइट टू इरेजर, ठीक है। अब जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का,
वो तो डिजिटल पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो मतलब जो यूजर है उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, पर उसमें कहीं भी राइट टू बी फॉरगॉटन का मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। ठीक है। और ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब ये राइट आपके पास हर बारी अवेलेबल नहीं होगा, इसके ऊपर कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो इसी के साथ हमने ये 10 क्वेश्चंस को कर लिया है। अभी 8 क्वेश्चंस और बचे हैं। ये जो भी 18 क्वेश्चन है टोटल, ये आपकी पीवाईक्यू थीम और जो करंट अफेयर में उन थीम्स के हिसाब से आ रखे हैं टॉपिक्स, उनको लेकर बनाए गए हैं। आप यकीन मानिए, इन्हीं थीम्स को रिवाइज, जो ये थीम्स आपके पास स्टार्टिंग में आपको दी गई हैं, आप इन्हीं थीम्स को रिवाइज करके जाइएगा, और बाकी जो 18 क्वेश्चन है इनको कर जाइए, क्योंकि ये करंट को उठाकर बना लिए गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वहां दिखेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15-16 इसमें से आ जाएं। ठीक है। ये जो है आपका रिवीजन में बहुत हेल्प कर रहा है, और आपका जो है आपको क्लैरिटी दे रहा है कि जब आपको रिवाइज करना है तो आपको किन किन थीम्स को रिवाइज करना है, तो आप पॉलिटी में इन सारी थीम्स को रिवाइज कर जाएंगे तो आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा पेपर के अंदर। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट का लेंगे, पॉलिटी के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और हमारे सी सेट वीडियो भी अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो वो भी आगे अपने लोग फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। आप एक बात मानिए कि अगर आप जो हमारे चैनल पे जो सी सेट के सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियो दिए हैं और पीवाईक्यू के वीडियो दिए हैं, अगर आप उनको भी कर लेंगे तो भी आपका सी सेट 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियो में आपको रोज 2 कॉम्प्रिहेंशन भी दिए जा रहे हैं, और पीवाईक्यू की थीम्स तो बार बार रिपीट होती ही है। तो अगर आप पीवाईक्यू भी कर जाओगे तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। विद दिस वी वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर। थैंक यू सो मच। कीप फॉलोइंग these coded and suggest it to your friends also. You will definitely going to clear this examination, which is going to happen in the month of May 2025. Thank you.